5 बाब उसकी 5वीं आयत निकालते ہیں۔ جی بھائی گلزار نکال لیا تو پڑھ دیں۔ اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ آمین۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ آمین۔ 7ویں اور 8ویں آیت بھی پڑھ دیں۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موت۔ آمین۔ 9ویں آیت اور 10ویں آیت بھی پڑھ دیں۔ بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ 10ویں آیت۔ کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ آمین۔ آمین۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے۔ روح القدس جو ہمیں خدا کی طرف سے بخشا گیا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ روح القدس کے وسیلہ سے خدا کی محبت کی خوبی، خدا کی محبت کی فطرت، خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کیونکہ جب ہم کمزور تھے، ہم کیا تھے؟ کمزور کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم میں اتنا زور نہیں تھا کہ ہم خدا کی مرضی کو جان سکیں، یا جان لیا ہے تو اس کے مطابق چل سکیں، خدا کی فرما برداری کر سکیں، خدا کی مرضی کو پورا کر سکیں۔ نافرمانی کے سبب سے کمزور، جب ہم میں کوئی زور نہیں تھا کہ ہم خدا کے ساتھ چل سکیں، بلکہ گناہ کے سبب سے موت ہم پر راج کرتی، ہم میں کوئی زندگی نہ تھی۔ تو جب ہم کمزور تھے، بہت کمزور تھے اور ہم بے دین تھے، اس وقت یسوع مسیح ہماری خاطر یہ کیا ہے؟ خدا کا اس نے ہم سے پیار کیا کہ ہم کمزوروں کے، جب ہم کمزور تھے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انسان ہم سے کہتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کر وہ کر، ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں کمزور ہوں۔ جب ہم خدا کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاں خدا کے حکموں کو کمزوری کے سبب سے توڑتے تھے، مرضی کو رد کرتے تھے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ملاپ ہو گیا، تو میل ملاپ ہونے کے بعد ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے، باوجود دشمن ہونے کے۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں کہہ رہا ہے۔ ہم کیا تھے؟ ہم خدا کے دشمن تھے۔ خدا کہتا یہ نہیں کرنا، ہم کمزوری کے سبب سے وہی کرتے۔ خدا کہتا اسے نہیں چھونا، ہم کمزوری کے سبب سے اسے چھو۔ خدا کہتا کہ تم نے صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے آگے جھکنا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ ہم کمزوری کے سبب سے اس کے مخالف کام کرتے، باوجود دشمن ہونے کے اس نے ہماری لیے اپنے بیٹے کو موت کے حوالے کیا، ہماری خاطر اپنا بیٹا قربان کیا۔ یہ اس کی کیا ہے؟ محبت ہے۔ کمزور تھے تو بھی اس نے ہماری ساتھ محبت کی، دشمن تھے تو بھی اس نے ہمارے ساتھ محبت کی۔ 8ویں آیت۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی، محبت کس کی خوبی ہے؟ خدا کی۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ محبت کس کی خوبی ہے؟ خدا کی۔ محبت انسان کی خوبی نہیں۔ ماں ایک انسان ہے، ماں کے اندر جو بچوں کے لیے محبت ڈالی ہے، باپ ایک انسان ہے، باپ اور ماں کے اندر جو محبت ڈالی ہے،
जो मोहब्बत है वो खुदा ने डाली है, वो इंसान की मोहब्बत नहीं है। माँ की, बाप की अपने बच्चे के लिए जो मोहब्बत है वो खुदा ने डाली। माँ वो चाहे चिड़िया है, चाहे वो शेरनी है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो भेड़ है, चाहे वो परिंदे की शक्ल में है, किसी शक्ल में भी है, रेंगने वाले जानदार की शक्ल में है, माँ के अंदर लव जो डाला है, मोहब्बत जो डाली है, वो किसने डाली है? खुदा ने डाली है। दो बहनों में, दो भाइयों में और ख़ानदान में जो मोहब्बत रखी है वो किसने रखी है? खुदा मोहब्बत है। और खुदा की मोहब्बत की खूबी जो हम पर कैसे ज़ाहिर हुई? जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर तीन चीज़ें जो खुदा के मुखालिफ थी और कुछ भी नहीं खुदा के लिए हम करते थे, खुदा के किसी फ़ायदे में नहीं थी बल्कि नुकसान में थी, वो तीन चीज़ें हमारे अंदर थी तो भी खुदा ने हमसे प्यार किया। पहली, हम कमज़ोर थे। 6ठी आयत बताती है कि हम कमज़ोर थे। 8वीं आयत बताती है हम गुनहगार थे। और 10वीं आयत बताती है हम दुश्मन थे। तीन बातें हम में पाई जाती थी, कमज़ोरी। और 6ठी आयत में एक और बात बताई है, बेदीनी, बेदीनों, हम बेदीन भी थे। बेदीन, कमज़ोर, गुनहगार। और ऐसे शख्स को कौन पसंद करेगा? कमज़ोर भी होए, दुश्मन भी आए। एक कमज़ोर उत्तों दुश्मन, तो उन्हें साढ़े कसूर भी बड़े कीते हों, साड़ा गुनहगार भी होए कि ऐसा शख्स मोहब्बत दे लायक है। मुखालफ भी होए, बेदीन का मतलब कोई गल मनन ते तैयार ही ना होए, साड़ा कसूरवार भी होए, मीन गुनहगार। तीजा, कमज़ोर भी होए, सानू ओदे तो कोई फ़ायदा ना होए। जो कमज़ोर होता है उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो भाई कमज़ोर तो कोई भैंस नहीं रखता, वो कहता है इन्हों की करना है, इसको सिर्फ हमने चारा ही डालना है। कमज़ोर भैंस भी नहीं रखते, पालतू जानवर रखने वाले कमज़ोर तो भैंस को भी नहीं रखते। जब वो कमज़ोर हो जाती है तो क्या करते हैं? इसको बेचते हैं, कसाब को, कसाई को बेच देते हैं और वो उसे क्या करता है? ज़बा करता है, कमज़ोर को ज़बा करता है। अच्छे ममालिक में कानून बने हैं कि वो चेक करके ज़बा करते हैं, लेकिन जिन ममालिक में कानून इतना मजबूत नहीं है वहाँ कसाब कमज़ोर जानवर ज़बा कर देते और खिला देते हैं। क्यों बेचा जाए? कमज़ोर को इंसानों में कबूल नहीं किया जाता, कमज़ोर जानवर को और कमज़ोर इंसान को कबूल नहीं किया जाता। वो कहता है कि इससे हमें क्या फ़ायदा है, इसने क्या फ़ायदा देना है। ना कमज़ोर इंसान को पसंद करते हैं, ना कमज़ोर जानवर को, रद्द कर देते हैं। हम क्या थे? कमज़ोर, गुनहगार, खुदा के कसूरवार, दुश्मन, खुदा के मुखालिफ। इन सब हालतों में उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर ज़ाहिर की। कैसे? इन तीनों आयतों में, 6ठी, 8वीं और 10वीं आयत में कहता है कमज़ोर थे, उसने मसीह को हमारे लिए, हमारी खातर क्या किया? कुर्बान किया। मसीह हमारी खातर मुआ। 8वीं आयत, गुनहगार थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। 10वीं आयत, दुश्मन होने के बावजूद उसके बेटे की मौत के क्या हुआ? बाप के साथ हमारा दुश्मन थे तो उसने मोहब्बत की और हमारे साथ क्या कर ली? सुलह कर। उसने बेटे को क्या किया? कुर्बान किया। कैसे उसका बेटा मरा? क्यों मरा? उसने अपने बेटे को क्यों मौत के हवाले कर दिया? ताकि हम बच जाएं। लेकिन कैसे बच जाएं? उसने हमारी कमज़ोरियाँ बेटे पर लाद दी, कमज़ोरियाँ बेटे पर लाद दी। कमज़ोर थे ना, ये मोहब्बत उसने की है। बेटे को क्यों मौत के हवाले कर दिया? क्योंकि उसने, हम कमज़ोर थे, हमारी कमज़ोरी बेटे पर लाद दी। हम गुनहगार थे, उसने हमारा सारा गुनाह किस पर डाल दिया? बेटे पर डाल दिया। दुश्मन थे, उसने हमारी सारी दुश्मनी किस पर डाल दी? और दुश्मन की सज़ा मौत, गुनहगार की सज़ा मौत। कमज़ोर जिसमें कोई ज़ोर नहीं, कमज़ोरी उस पर डाल, हमारी कमज़ोरियों के सबब से, गुनाहों के सबब से, दुश्मनी के सबब से खुदा के यहाँ क्या सज़ा थी? मौत। हमारी मौत पर डाल दी, यीशु पर डाल दी और हमें उसने अपना ज़ोर बख्श दिया। उसने हमें अपना ज़ोर बख्श दिया। गुनाह यीशु पर डालकर उसने हमें अपनी रास्तबाजी
बख्श दी। दुश्मन थे, दुश्मनी यीशु पर डालकर हमारे साथ क्या कर ली? सुलह, मेल मिला, हमें अपने साथ मिला लिया, गले लगा ली। ये उसकी मोहब्बत है जो उसने रूह के वसीला से हमारे अंदर डाल दी है। और ये मोहब्बत कौन हमें बताता है? ये मोहब्बत हमारे अंदर बोलती है। खुदा का रूह एक शख्स है, मोहब्बत एक शख्स है, रूह कुद्दस के वसीला से उसकी मोहब्बत हमारे अंदर है। ये मोहब्बत हमारे अंदर से बोलती है। उसने गलतियों का खत निकालें ज़रा, गलतियों 4 बाब, करंथियों के बाद आपको गलतियों मिलेगा, 4 बाब 6 आयत निकालें। चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। आमीन। उसने क्या डाला? उसने हमारे अंदर बेटे का रूह डाला है। वो रूह कुद्दसी, उसको कैसे वो कैसे बेटे का रूह बन गया? जो रूह उसने अपने बेटे यीशु के अंदर डाला, वही रूह उसने हमारे अंदर डाला। और वो रूह हमारे रूह के साथ मिलकर क्या देता है? वही देता है कि खुदा तेरा, हम उस रूह के वसीला से खुदा को क्या कहते हैं? वो रूह हमें समझाता है, बताता है खुदा हमारे अंदर बेटे का रूह है, बेटे का रूह है। और वो बेटे का रूह ही दरअसल हमारी रूह के साथ मिलकर खुदा को क्या कहता है? बाप। वो पहले बताता है, सिखाता है, गवाही देता है हमारी रूह के साथ मिलकर कि खुदा क्या है? हमारा। यहाँ लिखा है, फिर से ये 6 आयत पढ़ें। चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। कौन पुकारता है? रूह कुद्दस हमारे अंदर से खुदा को बाप कहकर पुकारता है। कुछ हैरानी की बात नहीं कि रूह कुद्दस खुदा को क्या कह रहा है? बाप। लेकिन इसके अंदर से पुकार कर कह रहा है हमारे अंदर से। हम क्या है? खुदा के। तो जब वो रूह हमारे अंदर आता है, हमारे साथ एक हो जाता है। हम क्या हैं? खुदा के बेटे, और वो हमें बेटे का रूह दे रहा है। दरअसल उस रूह के सबब से ही हम खुदा के बेटे हैं। वो रूह आया और खुदा के बेटे की फितरत लेकर हमारे अंदर, थोड़ा और गहरे में चलेंगे। बेटे का मतलब होता है निकला हुआ, बाप से पैदा हुआ हो, निकला हुआ। हम किससे पैदा हुए? खुदा से। कैसे पता चला? कि खुदा से रूह निकला, खुदा से रूह निकला। खुदा क्या है? रूह है। और उसके अंदर से बेटे का रूह निकला, उसके अंदर से रूह निकला और हमारे अंदर आ गया। और उस रूह के सबब से हम खुदा के क्या ठहरे? बेटे ठहरे। और वो रूह ही हमारे अंदर से खुदा को अब्बा यानी ए बाप कह के पुकारता है। और वो बेटे का रूह हमारी रूह के साथ एक है, हमारी जान के साथ, और वो हमारे जिस्म के साथ, हमारी शख्सियत के साथ एक होकर हमारी शख्सियत का सरबरा हेड है। और वही हमारी शख्सियत की पहचान है, और वही हमारे अंदर नया मखलूक खुदा का बेटा है। दरअसल वो बेटे का रूह हमारे अंदर है, इसलिए हम उसके बेटे हैं। बेटे का मतलब बेटियां और बेटे। ये ना समझिए गया कि ये सिर्फ मर्दों के लिए, नो, ये कॉमन। क्योंकि खुदा के यहाँ मसीह में ना कोई और मर्द रहा ना औरत, सब मसीह में सब कुछ मसीही है। खुदा में सब कुछ मसीह। हम क्या हैं? मसीह है। हम खुदा के, अपनी पहचान के लिए आप कह सकते हैं हम खुदा के बेटे। और हाँ, वो जब आपसे मिलेगा भी यही कहेगा आपकी पहचान के लिए, मेरी बेटी। और बेटों को क्या कहेगा? मेरे बेटे। ताकि हम समझ जाए हमारे अंदर उसने बेटे का, जो हमारी रूह के साथ एक है, हमारी जान के साथ एक, हमारे बदन के साथ एक हो, हमारी शख्सियत के साथ वो एक होकर
खुदा को क्या पुकारता है? इसी रूह के वसीला से उसने ना सिर्फ बेटे का रूह डाला है, बल्कि हर तरह का रूह उसने हमारे अंदर डाला है। इस रूह के वसीला से उसने हर तरह का अपना असर हम में डाला है। पहला क्रंथियों 12 निकालो। खुदाए रूह कुदस मौजूद है, वही इन भेदों को खोल रहा है। आमीन। हम उसका शुक्र करते हैं, रूह कुदस का शुक्र करते हैं। चौथी आयत, 12 बाब 4 आयत। नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही रूह है, जिसके अंदर से खुदा हमारे अंदर तरह तरह की नेमतें डालता। एक ही रूह है जिसके वसीला से खुदा ने, अभी हमने रोमियो 5:5 में पढ़ा, उसने अपनी मोहब्बत हमारे अंदर डाला। एक ही रूह है जिसके अंदर से उसने हमारे अंदर बेटे का रूह डाला। अब तरह तरह की नेमतें भी उसी रूह के वसीला से उसने हमारे अंदर डाली। खिदमतें भी तरह तरह की है, मगर खुदावंद एक ही है। हमारा खुदावंद खुदा वो रूह कुदस की सूरत में हमारे अंदर रहता है, और उस रूह के वसीला से ही, खुदाई रूह के वसीला से ही वो हमारे अंदर खिदमत को डालता। हमारे अंदर खिदमत है तो वो किसके वसीला से? रूह के वसीला। तस्वीरें भी तरह तरह की है, मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर, जो हमसे वो कराना चाहता है उसका असर वो हमारे अंदर डाल देता है। किसके वसीला से? खुदाए रूह कुदस, क्योंकि खुदा एक ही है, बाप बेटा रूह कुदस एक। 7वीं आयत। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर, हर उसके बेटे बेटी में, हर उसके बंदे में, हर खुदा के शख्स में रूह का ज़हूर, रूह क्यों डाला गया है? फायदा पहुंचाने के। आमीन। 7वें आयत में लिखा है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। सब फायदा पहुंचाने। नीचे लिखा है, आगे अगर पढ़ें, थोड़ा सा मैं ज़ुबानी ही बता दूंगा। रूह के वसीला से हिकमत, रूह के वसीला से इल्मियत, रूह के वसीला से ईमान। ईमान भी क्या है? रूह के वसीला से। रूह से शिफा देने की तौफीक, रूह से मौजज़ों की कुदरत, रूह से नबूवत, और रूह कुद्दस से रूहों का इम्तियाज, रूह कुद्दस से तरह तरह की ज़बानें तर्जमा। 11वीं आयत। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। जो कुछ भी खुदा हमारे अंदर डालना चाहता है, या उसने डाला है, या डालेगा, या शुरू से डाल चुका है, वो एक ही रूह के वसीला से हमारे अंदर डालता है। और उसी रूह के वसीला से उसने अपनी मोहब्बत हमारे अंदर डाली। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसका कलाम क्या है? यीशु ने कहा, मेरा कलाम क्या है? रूह। मेरा कलाम क्या है? रूह है। ये यूहन्ना की इंजील 6 बाब में पढ़ लें। निकाले यूहन्ना की इंजील 6 बाब। यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी आयत नंबर है 63। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 63 आयत में ये लिखा है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फ़ायदा। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और ज़िंदगी। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, यानी कि जो मेरा कलाम है वो क्या है? रूह। ये लिखी हुई बातें, ये जो लिखा हुआ कलाम है, ये खुदा के रूह के वसीला से हमारे अंदर जब डाल दिया जाता है, ये लिखा हुआ कलाम जब खुदा के रूह के वसीला से हमारे अंदर चला जाता है, तो ये मुकाशफा बनकर हम पर खुल जाता है। ये है मुकाशफा। वरना अपनी अकल से जितनी मर्जी बाइबल पढ़ते रहें, जितनी मर्जी, कोई है ये सादा सादा लफ्ज़ हमारी ज़बान में लिख, लेकिन इसका भेद हम नहीं जानते, इसकी कुदरत को नहीं जानता, ईमान ही नहीं आता। जितना दफ़ा मर्जी फ़िक्र ना करो, फ़िक्र ना करो, जितनी दफ़ा मर्जी पढ़ लो, जितनी दफ़ा मर्जी पढ़ लो, सारी फ़िक्र उस पर डाल दो, उसको तुम्हारी फ़िक्र है, लेकिन फ़िक्र फिर भी नहीं जान छोड़ेगी। लेकिन जब ये वर्ड रूह कुद्दस के वसीला से रूह में तब्दील हो, ये कलाम रूह के वसीला से, रूह कुद्दस के वसीला से हमारे अंदर जाएगा, तो ये मुकाशफा बन जाएगा, ये कुदरत से भर जाएगा कलाम, और ये कलाम हमारे अंदर क्या पैदा करेगा?
ایمان کر، اور پھر ہمارے اندر سے فکر چل، روح کے وسیلہ سے خدا کی فطرت ہمارے اندر ڈال، اور اس روح کو ہی اس نے کیا کہا؟ زندگی کا روح۔ پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب میں زبانی اب بول دیتا ہوں۔ پچھلا آدم کیا بنا؟ زندگی بخشنے والی روح۔ اس نے اسی روح کے وسیلہ سے ہمارے اندر کیا ڈالی ہے؟ زندگی۔ کتنی زندگی؟ ہمیشہ کی زندگی۔ اور اسی روح میں جو اس نے محبت ڈالی ہے، یہ روح ہی ہماری شخصیت کے ساتھ ایک ہو کر کیا بن گیا؟ بیٹا بن گیا، ایماندار بن گیا، راست باز بن گیا۔ اور یہی روح کیا کرتا ہے؟ خدا سے محبت کرتا ہے ہماری شخصیت کے ساتھ ایک ہو کر۔ یہ ہمارے اندر راست باز کا روح، راستے بھی اسی روح کے اندر وسیلہ سے ہمارے اندر، پاکیزگی روح کے جتنے پھل ہیں وہ اسی روح کے وسیلہ سے ہمارے اندر، اطمینان، تسلی، صبر، حلم، پرہیزگاری، فروتنی اور تحمل، مہربانی، ایمانداری، خوشی، اطمینان، یہ سب خدا کی فطرت ہے۔ یہ اسی ایک روح کے وسیلہ سے ہمارے اندر، یہ روح اب ہمارے ساتھ مل کر اس نے ہمیں ایک نیا مخلوق بنا ہے جو اب کیا ہے؟ خدا کا۔ اور یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اس روح کے وسیلہ سے اب خدا سے بھی محبت کرتے ہیں اور انسان سے بھی۔ اب جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس روح کے وسیلہ سے گزار رہے ہیں جو اس نے مسیح کا روح، بیٹا کا روح ہمارے اندر ڈالا ہے۔ یہ روح اب ہمیں کیا کر رہا ہے؟ لیڈ کر رہا ہے۔ جس میں یہ روح نہیں ہے، جس میں یہ روح نہیں ہے، جس کے اندر روح کے وسیلہ سے محبت نہیں ڈالی گئی، وہ کیا ہے؟ ٹھنٹھناتا پیتل، جنجناتی جان، شور ہے لیکن اندر کچھ نہیں، آوازیں آتی ہیں لیکن اندر جو یسوع پر ایمان لایا ہے، خدا سے پیدا ہوا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر خدا نے روح نہ ڈالی ہو۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے اس کے اندر خدا کا روح ہے، وہ خدا سے نکلا ہے، خدا روح ہے اور اس کے اندر سے روح نکل کر ہمارے اندر ہے۔ اس روح کے وسیلہ سے ہم خدا کے بیٹے ٹھہرے ہیں، اس روح کے وسیلہ سے ہم خدا کے راست باز لوگ ٹھہرے ہیں، اس روح کے وسیلہ سے ہمارے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے، اس روح کے وسیلہ سے خدا کی الہی قدرت ہمارے اندر ہے، الہی صفتیں ہمارے اندر ہیں، باپ کی مہراس اور باپ کی خوبیاں، باپ کی فطرت روح کے وسیلہ سے ہمارے لکھا ہے۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ آئیں یہ حوالہ پڑھیں پھر ہم اس کو کلوز کریں۔ یہ ٹاپک تو ایسا کھلا ہے، خدائے روح القدس تو سب جانتا ہے، وہ تو بولتا جائے گا، لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اب میں اگلی قسطوں میں بولوں گا، پھر اگلے دنوں میں وہ ضرور بولے گا۔ پہلا یوحنا کا خط اور اس کا 3 باب، پہلا یوحنا کا خط 3 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ 10ویں آیت بہت اہم ہے اس حوالے سے۔ اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ کہتا ہے کہ ابلیس کے فرزند اور خدا کے فرزند میں یہاں سے ہی آپ کو فرق نظر آئے گا، کیونکہ خدا کا روح ہے، خدا کا روح ہے، یہ روح ہی ہمارے اندر خدا کا کیا ہے؟ تخم۔ تخم کا مطلب بیج، خدا کا تخم، خدا کا بیج کیا ہے ہمارے اندر؟ خدا کا روح۔ یہی روح، بیٹے کا روح، راست بازی کا روح، زندگی کا روح، محبت کا روح جو اس نے ہمارے اندر ڈالا ہے، وہ خدا کی فطرت بن کر ہمارے اندر بیج کی صورت میں ڈال دیا گیا۔ خدا کی فطرت ایک بیج کی صورت میں، اور وہ بیج کیا ہے؟ روح القدس ہمارے اندر ڈال۔ خدا نے اپنی الہی
कुदरत, अल्लाही सिफतें, अल्लाही जिंदगी और अपनी खूबियाँ उस बीज में जिसका नाम रूह कुद्दस है, उसमें डालकर हमारे अंदर रख दी, और वो बीज हमारे अंदर इस ज़मीन के साथ एक हो। वो रूह कुद्दस हमारे साथ क्या हो गया है? एक हो गया है। वो रूह हमारे अंदर है, वो पाक है। जिसके अंदर बेटे का रूह है, जिसके अंदर खुदा का रूह है, वो गुनाह नहीं कर सकता। 10वीं आयत में ये ले, इसी से खुदा के फरजंद और इब्लीस के फरजंद ज़ाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं है। जो बीज उसने हमारे अंदर डाला है, रूह कुद्दस, वो कौन से काम करता है? रास्तबाजी के। वो खुदा के काम करता है। यहाँ हो सकता है आप थोड़े से उलझ जाएं, लेकिन खुदा का रूह उलझने नहीं देता। खुदा का रूह जब बोलता है बहुत सादा और आसान लफ्ज़ों में बोलता। आप कहेंगे जी खुदा का रूह हमारे अंदर है, ढाला भी है। वो तो कहता है कि खुदा का रूह जो हमारे अंदर है, बेटे का रूह, रास्ती का रूह, जो अब हमारी शख्सियत है, असल में जो हमारी अब शख्सियत है वो है जो खुदा ने रूह हमारे अंदर डाली है। वो असल में हमारी शख्सियत है, वो बेटे की शख्सियत है, वो खुदा की शख्सियत। उसमें तो गुनाह है ही नहीं। तो फिर हमसे गलतियां, खताएं, गुनाह अभी भी क्यों हो जाते हैं? तो फिर क्या हम इब्लीस के फरजंद तो नहीं कहीं बन जाते? इसका निशान ये है, अभी ये रूह जो हमारे अंदर डाला गया है, अभी हमने इसको पूरे तौर पर जाना, पहचाना नहीं है। इसकी पहचान में हम बढ़ रहे हैं। वो इब्लीस हमें कहीं ना कहीं गुमराह कर देता है पहचान की कमी के सबब, और वो पुरानी फितरत के जरिए से, पुरानी फितरत लेकर हम पर क्या कर देता है? फिर हमला करता है और हमसे गलती, खता और गुनाह भी करा देता है। तो फिर क्या हम कहीं इब्लीस के फरजंद तो नहीं बने? मैं आपको बताता हूँ। जब आपको गलती करके, खता करके और गुनाह करके पछतावा लग जाता, बेचैनी लग जाती है, और आपके अंदर से ये बात, खुदा बाप ये मेरी फितरत तो नहीं है, मैं तो नहीं ऐसा करना चाहता, मैं तो आपका बेटा बेटी हूँ, लेकिन ये हो गया है, ये हो रहा है, मैं तो नहीं, मैं तो आपका क्या हूँ? बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं नहीं ये करना चाहता, ये हो रहा है, ये मुझसे दूर करें, मैं नहीं ये करना चाहता। ये निशान है कि आपके अंदर खुदा का रूह है, जो आपके अंदर वो पछतावा पैदा करता है, जो आपको बताता है कि मेरे खुदा के बेटे बेटियों, ये तुम्हारी फितरत नहीं है। खुदा का रूह हमारे अंदर से कहता है ये हमारी फितरत नहीं है, ये बेटे बेटियों की फितरत नहीं है, खुदा के रास्तबाज लोगों की फितरत नहीं है। वो हमारे अंदर से फिर पछताता है, वो हमारे अंदर पछतावा लगाता है, और हम अपनी गलती का इकरार करते हैं। अब हम खुदा की हजूरी में तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और यसु का लहू अपने ऊपर मांगते हैं, और इस तरह से हमारी रास्तबाजी की पोशाक पर धब्बे नहीं। आमीन। लेकिन रोज़ बरोज़ हम रूह के साथ एक होते जा रहे हैं, बेटे की रूह, और उस रूह को हम आगे रखते हैं, उसको कबूल करते हैं कि उस रूह के वसीला से खुदा की शख्सियत, हम बेटे की शख्सियत हमारे अंदर डाली गई है। जैसे जैसे उस रूह को जानते पहचानते जा रहे हैं, उसको आगे रखते हैं, उसी को कहते हैं कि अब यही हमारी शख्सियत है, यही बेटे की शख्सियत है, यही खुदा के फर्जंदों की शख्सियत है, यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी फितरत है, और उसी फितरत को हम मान लेते हैं, कबूल करते हैं, और उससे ही आगे रखते हैं। उस शख्सियत को, रूह कुद्दस की शख्सियत को अपनी ज़िंदगी मानते हैं, कबूल करते हैं, और उसी रूह कुद्दस की शख्सियत के पीछे पीछे चलना चाहते हैं, उसी को अपनी लाइफ मानते हैं, तो हमारी ज़िंदगी से गलती, खताएं, गुनाह कम होते जाएं, और हम बेटे की सूरत पर ढलते जाएंगे। बेटे की सूरत रूह कुद्दस के वसीला से, यीशु मसीह की शख्सियत रूह कुद्दस के वसीला से हमारे अंदर डाल दी। आमीन। खुदाए रूह कुद्दस हमें इस भेद में और गहरा करे, और गहरा करे, और करता जाएगा, और हम मसीह में मैच्योर होते जाएं, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। Amen. God bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.